Hello, aspirants. My name is Manav Goyal, and today we are starting a new initiative that is Mains Analysis Series. And today we'll discuss about GS1 History PYQ analysis. जिसमें हम subject wise will look after subject wise trend analysis of UPSC mains. Okay, so let's begin. So this is about me. I'm an engineer. I'm a computer engineer. I'm a policy professional. I have done PG diploma in public policy. Then I'm a UPSC CSE faculty. I have taught in various platform, right? And I have given 4 attempts, and right now I am waiting for my result. I have attempted this year's mains and last year mains as well. So I think I should share my journey and my learnings to you. So in this regard, we have decided to go for a mains analysis series. So before we begin, this is how we'll approach the analysis. First of all, we have collected all the subject-wise PYQs, then year-wise PYQ, and then we have linked it with the syllabus. And then we'll explore the various patterns, right? एक बार हमारा सारा कंसाइज डेटा आ जाएगा तो विल नो कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एरियाज एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस themes, right, which UPSC is asking about and how to decode the syllabus. क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि UPSC mains is like UPSC syllabus is as vast as a sky, right? But this is true but not entirely true, right? After analyzing this paper, this video, at least you might see कि what I was trying to convey you. So let's start. Before going further, this is something which we have to ponder. Like simplicity is the ultimate sophistication, because trend analysis is something which we use to do this, right? We forget to follow simple things. In fact, in the name of simplicity, we do what we sophisticate things, right? And in fact, this was a UPSC previous year's essay, right? So let's move on. So history syllabus for GS1. I think you might have learned it by heart, but still before analysis, like I thought, let me give 30 seconds to this. So we have four major pillars in history for GS1. That is art and culture, India before independence, India post independence, world history. I'll not go into the details. Just read by the slides, and yeah, this you should learn by heart. Learn by heart होना चाहिए syllabus, because अगर syllabus आपको याद है, then this is the first step to win over GS exams or UPSC. So let's begin. Okay, so where's my spreadsheet? Let me find it. Yeah, there it is. Okay. So as we can see, this year also we have a lot of questions from history section, right? And similarly, every year we have like 70-80 marks, 30% maybe of GS course जो GS1 में आता है वो हिस्ट्री से आता है. So we'll decode it step wise. So first of all, let's go for art and culture. सो एज प्राइमा फेसी यू कैन सी कि आर्ट एंड कल्चर के हर साल क्वेश्चन आए 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. इनफैक्ट 2020 वॉज लाइक अ very art and culture era, we can say, right? And again in 2021 we have one question that is evaluate the nature of bhakti literature and its contribution to Indian culture. So if you have read the syllabus, so three things are very important in that syllabus. That is Indian culture and heritage, about art forms, literature and architecture, right? So if you see, तो यहाँ भी literature का है या architecture का है, देन बुद्धिज्म का है कि हाउ पाला पीरियड इज लाइक बुद्धिज्म के लिए कैसे आर्ट फॉर्म्स, बुद्धिज्म के लिए कैसे उन्होंने स्तूपा बनाया था, यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी डिफरेंट. देन मॉन्यूमेंट्स पे आया है फिर से. देन पर्शियन लिटरेरी सोर्स पे आया है. देन दिस इज समथिंग गंधारा आर्ट के बारे में आया है. फिर सेफ गार्डिंग इंडियन हेल्थ. अब वो दैट इज़ ये क्वेश्चन थोड़े से और उन्होंने डायनेमिक कर दिया है, इनको लिंक कर दिया करंट अफेयर्स से.
right? And assess the of importance of the accounts of Chinese again, and then foreign literature पे आ गया है, मतलब कि फॉरेनर्स ने जो इंडियन लिटरेचर के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है अलग अलग टाइम जोन्स पे, राइट? देन अगेन भक्ति मूवमेंट श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में है. सो एज यू कैन सी इट कि आर्ट एंड कल्चर इज समथिंग दैट यू मस्ट लाइक, और इन क्वेश्चन को आपको यू हैव टू अटेम्प्ट इट, राइट? अगर आप कोचिंग क्वेश्चंस करते हैं आई डोंट नो, लेकिन डेली PYQ में यू मस्ट इनकॉपरेट दीज, लाइक यू शुड फॉर एग्जाम्पल इवेलुएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर. भक्ति लिटरेचर में आप पूरा बता सकते हैं कि हाउ साउथ इंडिया में कैसे भक्ति मूवमेंट आया था, एंड वहाँ से लिटरेचर, भक्ति लिटरेचर आया था. एंड फिर क्या कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में बता सकते हैं, मेडिवल में, वेस्टर्न इंडिया में, महाराष्ट्र में बता सकते हैं, देन असम में बता सकते हैं कि भक्ति लिटरेचर का कैसा रहा. एंड देन द कॉन्ट्रीब्यूशन पार्ट कि हाउ दे हैव मेड आर कल्चर कंपोजिट, राइट? इनफैक्ट हमारे प्रीएम्बल में भी, अब अगर ये GS2 का होता तो आई वुड से कि इसको आप प्रीएम्बल से भी लिंक कर सकते थे. हाउ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज लाइक फर्टेनिटी, जो है वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल वैल्यूज़ है, वो भक्ति लिटरेचर से आई हैं, राइट? इट इज़ ऑल अबाउट इंटरलिंकिंग, राइट? सो ऐसी सो दिस इज़ माई एडवाइस कि आप इस लिस्ट को, इस एक्सेल शीट को आई विल शेयर इन द ग्रुप, एंड डू take a look, and day by day you can write an answer and share in the Telegram group. Okay, so we have seen like art and culture mein, yes, this is the important pillar in history, right? Now let's see about India before 1947. So India before independence is something इस बार UPSC ने इस सेक्शन को ज़्यादा फोकस किया है, in history section overall, right? About various social religious reforms and moderate phase के बारे में, how they have prepared the wider base for freedom movement. Then constructive program of Mahatma Gandhi, and during the gap like NCM और CDO के बीच में जो गैप था, उसमें उन्होंने कैसे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स किए थे, राइट? ऐसी. एंड वन थिंग लाइक जो मेरा कंक्लूजन है कि स्पेक्ट्रम इज लाइक suffice. अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो दैट प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर मॉडर्न हिस्ट्री एटलीस्ट यू विल एबल टू राइट गुड आंसर्स. बाकी तो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे, राइट? हाउ यू प्रैक्टिस, कितना आप प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए, राइट? उसके बाद मैं अगर देखूंगा तो 19 में 4 क्वेश्चन थे, 20 में 2 क्वेश्चन थे, 21 में 3 क्वेश्चन थे. सो इसमें एक और चीज़ है, इसमें गांधी जी के बारे में, गांधी जी के लाइफ इवेंट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है. फॉर एग्जांपल 2021 में आया था, इस बार ही आया था इनफैक्ट, गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स लिखने थे, राइट? इसमें चरखे, खादी यूनिट्स के बारे में लिख सकते थे, आश्रम्स के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में लिख सकते थे, मतलब स्वच्छ भारत. गांधी जी यूज टू से कि आई विल फॉरगो माई फ्रीडम फॉर क्लीनलीनेस, right? And similarly you can say Gandhian phase 2019 में आया था कि many voices has strengthened and enriched the nationalist movement during Gandhian phase. उसमें गांधीयन फेज को हम बेसिकली बहुत सारे, मतलब इंडियन मूवमेंट के हिसाब से देखेंगे तो 1914 में उनकी एंट्री हुई थी एंड वॉट नॉट. उसमें बहुत सारी वॉइसेस आई थी, कम्युनिस्ट की एंट्रीज हुई थी, फिर फीमेल की हुई थी, फिर ट्राइबल मूवमेंट हुए थे, फिर वर्कर्स के मूवमेंट हुए थे, तो बहुत सारी वॉइसेस आई थी हाउ गांधीयन फेज हैज़ enriched, like these voices are enriched. Similarly एक 2018 में आया था, throw light on significance of thoughts of Mahatma Gandhi in the present time. ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, राइट? सो एज यू कैन सी गांधी जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गांधी जी से रिलेटेड जितने मूवमेंट है, जितनी सारी चीज़ें हैं, यू शुड प्रिपेयर इट. अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेक्ट्रम विल सफाइज इन आंसर राइटिंग. इन सारे आंसर्स को आपने कर लिया, ये सारे आंसर्स को अगर आपने कर लिया तो आई बिलीव कि हाँ, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस will work, right? And more importantly इस बार ये थोड़ा सा अलग किया है इन्होंने, यूपीएससी ने इस बार ब्रह्म समाज पे और इस पे क्वेश्चन पूछा है, लाइक यंग बंगाल मूवमेंट जो था आपका, डेजोरियंस बोलते थे आई बिलीव, राइट? जस्ट चेक इट आउट. सिमिलरली इफ़ यू सी नेक्स्ट स्लॉट हमारा दैट इज़ पोस्ट 1947. पोस्ट 1947 में यूपीएससी ने 2013 के बाद
अब पूछा है इस पे सवाल, एंड दैट इज़ द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज एंड सोशल कल्चर प्रॉब्लम इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। 10 नंबर का मार्क है, इसमें 2 सेक्शन है और उसमें आपको एसेस करना है, राइट, जो मेजर इश्यूज थे कि भाई स्टेट के क्या इश्यूज थे, या फिर उस समय जो किंग्स थे उनके क्या इश्यूज थे, और सोशो कल्चरल प्रॉब्लम क्या थी। सोशल कल्चरल प्रॉब्लम में तो वही आ जाएगा कि टू नेशन थ्योरी थी, कि या हमारा पार्टीशन उन्हीं लाइन में हुआ था कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है एंड वॉट नॉट। सो दिस इज समथिंग। एंड 2013 में बाकी जो क्वेश्चंस थे, 2013 वाले क्वेश्चंस तो आई बिलीव उसके बाद नहीं पूछा यूपीएससी ने। सो यू कैन, बट प्रीलिम्स में भी इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो उनको आप एक बार देख लीजिए, जो मेजर इवेंट्स हुए हैं, मेजर जैसे भूदान मूवमेंट वगैरह है, एंड और बाकी तो जस्ट मेक श्योर कि आपको थोड़ा बहुत टॉपिक के बारे में पता हो। एंड वंस कोई भी आप इसके लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, राइट। देन वर्ल्ड हिस्ट्री में भी यूपीएससी हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है। 2020 में नहीं पूछा था उसने, बट येस एवरी ईयर इट हैज़ समथिंग फॉर अस, राइट। इस बार थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन था। देयर वॉज सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द 2 वर्ल्ड वॉर्स, इवेलुएट द स्टेटमेंट, राइट। वो भी 15 मार्कर का क्वेश्चन था। सो इसको दिस वॉज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, बट येस इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि हाउ डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम को कैसे किया बिटवीन द वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के जब ख़त्म हुआ तो फिर से राजशाही की तरफ, ऑटोक्रेसी की तरफ, मोनार्क की तरफ, मतलब जितने भी बेनिफिट्स थे सब ने ले लिए थे। एंड हाउ कॉलोनियल टेरिटरीज ले ली गई थी, एंड कैसे क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम पे। देन राइज ऑफ कम्युनिज्म तब हुआ, राइट। एंड उसी बीच में क्या कहते हैं फासिज्म, नाजीज्म आया जिसने ऑटोक्रेटिक रूल की तरफ किया, एंड हाउ दे हैव थ्रेटन डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम, राइट। सो या वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी आई वुड रिकमेंड कि यू शुड हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ज़्यादा टाइम देना इज़ नॉट गुड। लाइक उसमें जो जो इवेंट्स या फिर जो जो आपके क्या कहते हैं की वर्ड्स मैंशन है सिलेबस में, यू शुड गो बाय दैट, राइट। एंड 1 or 2 रीडिंग विल सुफाइस। इसकी आपने अगर शॉर्ट नोट्स बना दिए तो दैट विल डू। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक जो मेरी शीट है ये मैंने बनाई है जो आपके लिए। सो लेट मी नो इफ यू वांट दिस शीट, आई विल शेयर इट विद सुमित सर एंड ही विल शेयर इट विद यू, right? And yeah, so to conclude this, let me bring back my slide. Yeah, so to conclude, like हमने जो देखा conclusion में हम जो हमारी learning थी, right, जो major learning थी इसकी एक तो यही थी कि सबसे पहले art and culture and modern history are very important. ये मेजर पार्ट है आपका GS1 हिस्ट्री का, ये बड़ा स्कोरिंग पार्ट है, राइट। बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री में यू डोंट नो कहाँ से क्वेश्चन आया, कैसे क्वेश्चन आया, बट येस आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न हिस्ट्री समथिंग। इनफैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री आई वुड से कि एक ऐसा क्वेश्चन है कि सारे क्वेश्चंस यू नो समथिंग अबाउट देम, राइट। सो यू शुड आर्टिकुलेट द क्वेश्चन वेरी वेल। लाइक आपको सही से आर्टिकुलेट करना है अपने आंसर्स को भी। मतलब आर्टिकुलेशन ऑफ क्वेश्चन का मतलब है कि हाउ यू कॉम्प्रिहेंड अ क्वेश्चन, राइट। तो वो करना है, और उसमें भी आपको आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है। अभी लिटरेचर का यूपीएससी ने 2020 में भी पूछा था, पर्शियन लिटरेचर के बारे में पूछा था। इस बार क्या कहते हैं भक्ति लिटरेचर के बारे में पूछा है, राइट। सो हर जोन की यू कैन हैव अ शॉर्ट नोट की यार इसकी लिटरेचर क्या थी। एटलीस्ट यू शुड नो अ बिट एग्जाम्पल्स, राइट। बाकी थोड़ा बहुत तो आपको पता रहता है कि, राइट। ऐसी मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में मैं कहूँगा कि स्पेक्ट्रम विल वर्क। इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड कंट्रोवर्सीज, फॉर एग्जांपल एंग्लोइस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट, मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, राइट। ये सारी गांधी जी से रिलेटेड एवरीथिंग, और स्पेक्ट्रम से आपका काम चल जाएगा, राइट। बाकी इफ़ यू कॉम्प्लीमेंट दिस विद एनसीईआरटी देन इट इज़ लाइक अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस लाइक यूपीएससी ने इस बार ब्रेक किया है। 2013 से नहीं पूछा था, बट एक आध सवाल आया है। बट येस इसको आप लाइटली मत लीजिएगा, बिकॉज 2013 में दे हैव आस्क्ड मोर देन अराउंड 4 क्वेश्चन। सो यू शुड लाइक हैव अ शॉर्ट नोट, जो भी एक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक कोई भी नोट्स हो,
आप देखिए 50-60 पन्नों का होगा, एंड दैट इफ़ यू रेड दैट, मतलब एक बार आपने एक दो बार पढ़ रखा है तो इट विल बी गुड फॉर यू, राइट. एंड फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो, वर्ल्ड हिस्ट्री में ऑलमोस्ट एक साल में क्वेश्चन आता है. इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के था, राइट. एंड या वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे लास्ट टाइम तो अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन था, लास्ट टाइम बोले तो 2019 में, राइट. अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन पे था. इस बार उन्होंने थोड़ा घुमा के दिया कि हाउ लाइक डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम वॉज थ्रेटन इन बिटवीन द वर्ल्ड वॉर्स, राइट. सो yeah, this is all like this is all for today. And I'll share the PDF, not PDF, the Excel spreadsheet for this history uh, in the group. And उसको आप देखिए एंड डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए. एंड थैंक यू.